So today we'll discuss about the second tool uh, of the compiler design, that is called as YARC. The full form of this tool is Yet Another Compiler. Okay. So this tool is called as Yet Another Compiler. So what is the definition? It is a tool which generates the parser. So before this, we have studied about the Lex tool, which was used to generate the lexical analyzer. Now, after lexical analyzer, there is a next phase that is called as syntax analyzer or parser. So this tool is used to generate the parser. So there are various type of parsers. So which parser it is going to generate? It is going to generate LR1 parser, right? So this particular tool is responsible to generate the parser, and the type of the parser will be LALR. So basically it takes input from the lexical analyzer. It takes input from the lexical analyzer and generates parse tree, right? So it will verify whether the particular input is correct or not correct syntactically. Oh, okay. So this is the introduction about the YARC. Now we'll see what is the what are the steps it uses. So there are again 3 steps of the YARC tool also. In the Lex, the first tool was the compilation, where the Lex compiler was used to compile the Lex program into the into the C program, and the C program was lex.yy.c. So here the first block, is YARC compiler, right? The first block is YARC compiler. Now the second block, we'll talk about the second block. Second block is C compiler. And then the third block. The third block is your parser, and the name of the parser will be a.out. Now what are the inputs we are going to provide? So in the YARC compiler, the input will be file in the YARC, right? So input file, and the name of the file will be whatever name, dot extension will be .y. In the Lex, the extension was L. In the YARC, the extension will be .y. And the output, what is going to be generated in the output? In the Lex, the output was lex.yy.c. In YARC, the output will be y.tab.c. The output file will be y.tab.c. Now, this output file, that is y.tab.c, will behave as the input for C compiler, right? So y.tab.c will be the input file for the C compiler, and in the output we will have a file called as a.out, right? So the output will be generated as a.out. Now a.out, in a.out your input will be high level language, that is a streams. You'll provide the input as a character streams, and it will provide or expression, or it will give you the syntax tree, parse tree, right? So you will give the input and it will give you syntax tree. So these are the 3 steps of the YARC tool. So in the first step, you will give the YARC file. The extension of the file will be .y to the YARC compiler. It will produce the y.tab.c as a output file. Then in the second step, you will be having C compiler,
and the input file will be y.tab.c, and the output will be generated as a.out. In the last step, execution steps, you will have a.out, which is your parser, LALR parser. You'll provide the input expression and you'll get the syntax tree in the form of validation, whether it is validated or not validated. So what is the structure of the program and what are the main commands you require? There are some important things that you require while designing the program in the YARC language, right? So first of all, we'll study about the YYLVAL. So this is the first command or first variable that we are going to use in the programming of the YARC, in the programming of the parser. So what is the definition of it? Value associated with the tokens. जो भी वैल्यू टोकन्स की होती है, जो भी वैल्यू टोकन्स में है, टोकन से एसोसिएटेड है, आर रिटर्न्ड बाय लेक्स. जो टोकन्स की वैल्यू लेक्स रिटर्न करेगा वो कहां पर होगी? वो आपको यहां से मिलेगी, y.lval से मिलेगी. नाउ द नेक्स्ट थिंग यू विल रिक्वायर एज, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज करिए कि आपने कोई इनपुट नंबर डाला है, आपने कोई नंबर इनपुट करा हुआ है एंड यू वांट टू एक्सट्रैक्ट दैट नंबर. बेसिकली आप जब इनपुट डालते हैं, दैट बिहेव्स एज ए कैरेक्टर स्ट्रीम एंड यू वांट टू एक्सट्रैक्ट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर फ्रॉम दैट इनपुट. तो आप उसके लिए क्या 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 यूज कर सकते हो? तो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन एज y_lval equals to a to I. This function I've already, this expression I've already discussed in the lex tool also. So YY text is a pointer to the input character stream, and from there you have converted the input into the numeric and you have stored that input into YYLVAL, right? Okay. Now the next thing that you will use, हम एक बार discuss भी कर चुके हैं, YY text. So it is a pointer to the matched string, matched input string, right? It is a pointer to the matched input string. Now the next thing that we are going to use as YY_wrap. ये भी आप लेक्स में पढ़ चुके हो जब मैंने लेक्स आपको पढ़ाया था. So it is called by lex or YARC when input is exhausted. Right, so it will return y if your input is done, otherwise it will return 0. Now the next thing that you are going to use in the YARC is YY_parse function. So it is responsible for parsing to occur. जो भी आपने इनपुट डाला है, जो भी आपने इनपुट एक्सप्रेशन डाला है, उसकी पार्सिंग को करने के लिए यू रिक्वायर दिस फंक्शन. सो दिस फंक्शन रीड्स tokens and execute the actions. Actions यहां पर आप जो लिखेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे, that will be in the form of the production. So उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो पार्स ट्री है उसको ये क्रिएट करेगा, जो एक्सप्रेशन है उसको वैलिडेट करेगा, राइट? सो दीज 5 थिंग्स यू विल रिक्वायर व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम इन द YARC लैंग्वेज. सो बेसिकली सिंटैक्सेस हम जो फॉलो करेंगे वो सी लैंग्वेज की ही फॉलो करेंगे. तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर. ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम. Fine.
So सबसे पहले तो आप जैसे वहां पर लिखते थे, you will write the declaration section. Then you will apply the separator. After that, there is a section translation rule. Rules. Okay, one more thing. Between declaration and translation, we used to write tokens also. Tokens that we'll see in the example. Tokens use karte hain. And separator again and auxiliary functions. जो भी function आपको create करना है, you'll write that function. Fine. So this is the structure of the program. Very simple. It is almost similar to the Lex program. Now, most important thing, यहाँ पर जो ट्रांसलेशन रूल है, वहां पर जब आप लेक्स में ट्रांसलेशन रूल लिखते थे, सो द format of the format to write the rule was pattern, and within a curly braces you write actions, right? But यहाँ पर आपका जो method होगा रूल्स को लिखने का, वो आप किस तरीके से लिखोगे? You will write head, इसको यहाँ थोड़ा head colon body 1, and then you will write action against that particular production. Similarly, अगर आपको next production लिखना है, तो जैसे मान लीजिए वो slash में है, तो slash की बजाय यहाँ हम क्या use करेंगे? pipe, and then second production that is body 2, और उसका क्या action आपको लिखना है. So in this way we used to write the translation rules. Fine. For example, जैसे अगर आप suppose करके चलिए S tends to मान लीजिए AB है slash BC है, so head क्या हो गया? S, body 1 क्या हो गई? AB, और body 2 क्या हो गई? BC, and उससे related फिर आप जो actions आपको उसके साथ embed करने हैं, you'll write those actions, right? Now there are some symbols that we will use. इसी के आगे देखते हैं. There are some symbols जो आपने यूज करने हैं. तो फर्स्ट सिंबल इज डॉलर डॉलर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? LHS नॉन टर्मिनल. एट्रीब्यूट वैल्यू. फाइन. तो डॉलर डॉलर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द नॉन टर्मिनल विच इज प्रेजेंट इन द LHS. नाउ व्हाट इज डॉलर I? I can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, any number. So ith symbol of body. Body का मतलब RHS. RHS में कोई भी जो ith symbol आया है, उसकी जो value है, ये उसको represent करेगा. Now let's take example. Suppose I have written a production E tends to E plus T. So my E will be represented as dollar dollar, right? This E will be represented as $1. This plus will be represented as $2, and this T will be represented as $3, right? So I hope it is clear to you ki how do we represent the $1, $2, and $3. So $I representation. So this is the structure of the program. Now, before writing the program, let's take one example. First of all, I'll give you the sample program, and after that, we'll start the programming in the Flex tool on Windows. Okay, fine. So first program that we want to write is, क्या करना चाहते हैं? Verify the string ABB accepted with ग्रामर. और ग्रामर क्या है? S tends to ASB / null. This is my grammar, which means what type of strings will be accepted by this grammar?
the strings will be accepted as equal number of A's and equal number of B's. These are the strings that are going to accept by this grammar, right? And हमें कौन सी string check करनी है? We need to check the string whether this particular string will be accepted by the grammar or not. इसके लिए आपको जो है प्रोग्राम डिजाइन करना है. फाइन, तो कैसे करेंगे डिजाइन पहले देख लेते हैं. So first of all, आप याक में डायरेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं शुरू करोगे. योर प्रोग्राम विल हैव टू पार्ट. एक आपको लेक्सिकल एनालाइजर बनाना पड़ेगा और एक आपको सिंटेक्स एनालाइजर बनाना पड़ेगा, राइट? तो जो लेक्सिकल एनालाइजर वाला पार्ट है दैट विल राइट इन दी लेक्स, एंड जो सिंटेक्स एनालाइजर वाला पार्ट है दैट विल राइट इन दी याक. फाइन, so in this way we are going to design the program, our program. Okay, so what are the compulsory things that we need to write? So declaration section, हम section कौन सा बनाने जा रहे हैं पहले ये मैं clear कर देती हूँ. We are going to design lex part first, right? तो सबसे पहले इसका declaration section बना रहे हैं. Now in declaration section you need to include a file, include, आपको एक फाइल लिखनी है y.tab.h. तो पहले इस फाइल का पर्पस देख लेते हैं. सो बेसिकली दिस इज अ फाइल, दिस मैचेस टोकन declaration accessible, token declaration in Yak accessible to lex program. तो बेसिकली जितने भी टोकन्स हम याक में डिक्लेयर करेंगे, हम सिंटेक्स एनालाइजर में डिक्लेयर करेंगे, वो टोकन्स वी कैन एक्सेस इन दी लेक्स प्रोग्राम बाय यूजिंग दिस फाइल y.tab.h, राइट? अब ये फाइल कैसे बनेगी दैट वील सी इन दी लेटर. ओके, नाउ द नेक्स्ट फाइल इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, चलिए पड़ेगी तो बाद में डिक्लेयर कर लेंगे. फिलहाल हमें कोई वेरिएबल भी नहीं चाहिए तो हमने डिक्लेरेशन सेक्शन बंद कर दिया. ओके, नाउ सेपरेटर अप्लाई कर देते हैं. फर्स्ट पैटर्न स्मॉल ए, अगर स्मॉल ए आता है तो हमने रिटर्न करना है कैपिटल ए टोकन, और ये जो कैपिटल ए टोकन है दैट विल डिक्लेयर इन दी याक प्रोग्राम. ओके, बेसिकली आपके जो टर्मिनल्स होते हैं विच मीन्स जो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं दैट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन दी याक प्रोग्राम इन दी एक्सप्रेशन, तो उनको हम टोकन्स के फॉर्म में यहाँ पर यूज करेंगे. और अगर बी आता है तो वहां पर हम एक टोकन डिक्लेयर करेंगे बी, और वो यहाँ पर रिटर्न करेंगे हम. ठीक है, ये टोकन भी कहां से आएगा, हमारा याक प्रोग्राम में होगा. ओके, अगर आपने एक्सप्रेशन को लिखने के बाद एंटर की को प्रेस कर दिया तो वील रिटर्न जो कुछ भी आपने इनपुट डाला होगा. फाइन, वील रिटर्न दी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दैट इनपुट, और या फिर आप यहां पर रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, यू कैन राइट डाउन रिटर्न 0. फाइन, तो ये ब्लैंक रिटर्न कर देगा और उसके बाद आप इसको बंद कर देंगे. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप यहाँ पर फंक्शन जो मेन प्रोग्राम लिखते हैं वो वाला सेक्शन नहीं बनाएंगे. दैट सेक्शन विल इंक्लूड इन दी याक पार्ट. फाइन, सो द मेन प्रोग्राम फंक्शन section will not be included in the lex part. Now we'll write the yak part. Okay, so what will be the yak part? In the yak part सबसे पहले वही declaration बना लेते हैं. तो declaration में याक में हमें फिलहाल सिर्फ एक फाइल ही चाहिए होगी क्योंकि हम printf यूज करेंगे. So include stdio not h, ये वाली फाइल चाहिए होगी. ओके, सो डिक्लेरेशन बंद कर देते हैं. नाउ वील डिजाइन दी टोकन पार्ट. तो हमने टोकन, दो टोकन लेने हैं ए एंड बी. सो आई हैव डिफाइंड दीज टू टोकन्स इन दी याक पार्ट. नाउ आई विल स्टार्ट विद दी रूल पार्ट. नाउ रूल पार्ट, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं रूल पार्ट को. तो रूल पार्ट में बेसिकली आप कब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दी स्ट्रिंग. आप स्ट्रिंग को तब एक्सेप्ट करोगे
जब आपका जो स्टेटमेंट है उसमें इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज होंगे, राइट? तो आपका स्टेटमेंट एक्चुअली बनेगा क्या उस केस में? आपकी जो ग्रामर है वो क्या बनेगी उस केस में? आपकी ग्रामर जो है, सबसे पहले आप एक स्टार्ट सिंबल डिक्लेयर करेंगे एस, और ये एस पूरा रिटर्न होता है, और आप जब एंटर की प्रेस करते हो इसके साथ, तो दिस शुड वेरीफाई योर स्ट्रिंग, सो इट विल रिटर्न 0. दिस इज माई वेरिफिकेशन पार्ट. वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? जब मेरा s टेंड्स टू एस, जो ग्रामर है वो हमारी ये है, दिस इज माई ग्रामर. तो जब मुझे s रिटर्न होकर के मिलेगा, जब मुझे s रिटर्न होकर के मिलेगा, तो इसका मतलब मेरी स्ट्रिंग जो है वो वेरीफाई हो गई है, राइट? तो ये वेरिफिकेशन स्टेप है, ये स्टार्ट रिटर्न करने का स्टेप है. नाउ द नेक्स्ट ग्रामर पार्ट, हेड इज s और फर्स्ट टोकन, स्टार्ट सिंबल एंड सेकेंड टोकन. दिस इज माई ग्रामर. और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट रूल है वो मैं पाइप से डिफाइन करूंगी, और वो क्या रिटर्न कर रहा है? नल. कुछ भी रिटर्न हम उसमें नहीं कर रहे हैं. तो आई हैव डिफाइंड द रूल पार्ट. इसको बंद कर देते हैं, रूल पार्ट हमने बंद कर दिया. फाइन. ओके, नाउ विल राइट द फंक्शन पार्ट. तो हम मेन को डिक्लेयर कर रहे हैं, वी आर डिक्लेयरिंग द मेन. सो ऑब्वियसली ये आपका रूल पार्ट है, और रूल पार्ट के बाद हम क्या बना रहे हैं? फंक्शन पार्ट बना रहे हैं. तो मैंने सबसे पहले लिखा प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग. फाइन. ओके. अब वहां पर आप जो स्ट्रिंग एंटर करवाते थे वो वाई वाई लेक्स से कराते थे, बट हमें यहाँ क्या करवाना है? इनपुट करवाने के बाद उसका सिंटेक्स ट्री भी जनरेट करना है, उसको हमें पार्स करके भी देखना है. तो हम फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे वाई वाई पार्स. इफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न 0 टू यू, अगर ये फंक्शन आपको 0 रिटर्न करता है, इसका मतलब आपने जो भी स्ट्रिंग डाली है दैट इज अ वैलिड स्ट्रिंग, वो एक्सेप्ट हो गई. फाइन. तो आपने मेन को बंद कर दिया. नाउ इनवैलिड कब पता चलेगी? अब ये कैसे पता चलेगा कि जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट नहीं हुई? तो उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज अ फंक्शन वाई वाई एरर. Okay, so YY error function will be executed when it will raise the error if your string is not accepted by the parser and it is not returning 0, right? तो ऑटोमेटिकली ये जंप करके एक्सेप्शन पे आ जाएगा एंड योर एक्सेप्शन विल बी कैच्ड बाय YY एरर. तो हम प्रिंट क्या करेंगे यहां पर? प्रिंट एफ नॉट एक्सेप्टेड. This will be the message I'm going to print if there is an error or the string is not accepted by the parser. And then I have made YY wrap. तो by default जो input है वो exhaust जब हो जाएगा तो automatically YY wrap आपका जो है वैल्यू को रिटर्न कर देगा, इनपुट को जो है वो कंप्लीट कर देगा. फाइन. सो दिस इज द कोड. तो आपने करा क्या है कोड में? यू हैव मेड अ लेक्स पार्ट, देन यू हैव मेड अ याक पार्ट, राइट? आपने लेक्स पार्ट बनाया, आपने याक पार्ट बनाया. लेक्स पार्ट में आपने रूल्स बनाए हैं, रूल्स टोकन के फॉर्म में बनाए हैं आपने. एंड याक पार्ट में आपने ग्रामर को डिक्लेयर करा है, प्रोडक्शंस को डिक्लेयर करा है, और उसके बाद आपने फंक्शन में पार्सिंग को परफॉर्म करा है, मेन फंक्शन में पार्सिंग को परफॉर्म करा है. फाइन. सो लेट्स स्विच टू दी टूल, फ्लेक्स टूल, और रन करके देखते हैं प्रोग्राम को. Fine, so I'm sharing the screen again. This is my flex tool and I think एक प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है. Okay, so it is not a program. इसी को सेव एज कर लेते हैं. And I'm making it as grammar3.l. It is the lex part. Fine. तो आपने y आपने stdio.h दिया है, ऑल्दो इसका भी कोई यूज नहीं है क्योंकि आप printf यूज नहीं कर रहे हैं.
तो आई हैव इंक्लूडेड y.tab.h, फाइन। और उसके बाद मैंने डिक्लेरेशन सेक्शन को बंद कर दिया है यहाँ पर, ये हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन है। ओके, उसके बाद मैंने एक टोकन डिक्लेयर किया A, दूसरा एक टोकन मैं बनाने जा रही हूँ B, एंड दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू B, टोकन B। ओके, और इसकी भी कोई जरूरत नहीं है तो इसे फिलहाल हटा देते हैं। सो दिस इज माय लेग्स पार्ट। नाउ आई विल मेक दी याक पार्ट। तो याक पार्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, न्यू पर जाकर के आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, याक स्लैश बाइसन, राइट। तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ फाइल, मैं इसी को सेव एज कर रही हूं अभी यहां पर। सो आई saved it with .y extension. आपको ध्यान रखना है, lex file will have the extension .l and yak file will have the extension .s, sorry .y. तो ये आपकी ग्रामर है, मैंने यहाँ पर एक कमेंट डाल दिया है, this is my grammar and this will accept equal number of a's and equal number of b's. Fine. So this will be accepted by this grammar. तो दो टोकन आप डिफाइन कर देंगे यहाँ पर, A एंड B, आपने दो टोकन यहाँ पे डिफाइन कर दिए। नाउ आई हैव मेड अ स्टार्ट सिंबल एंड द स्टार्ट विल हैव ओनली S. ओके, देन माय नेक्स्ट expression is this, and if second expression is null, so I have made second expression as null. यहाँ पे पाइप साइन लगाया हुआ है मैंने। नाउ मेन में मैंने मैसेज दिया हुआ है एंटर स्ट्रिंग, पार्सिंग को चेक किया है, इफ इट इज 0 विच मीन्स योर स्ट्रिंग इज वैलिड। उसके बाद YY रैप बनाया हुआ है, YY एरर में आपने क्या करा हुआ है, इफ स्ट्रिंग इज नॉट वैलिड इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ग्रामर, तो ये नॉट एक्सेप्टेड देगा। एग्जिट 0 मैंने इसलिए लगाया ताकि ये दोबारा इनपुट ना मांगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी सी लैंग्वेज की, stdlib.h. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing you need to remember, there are 3 steps to execute the program. Fine. So step number 1, सबसे पहले open command prompt, सबसे पहले आपको command prompt पे जाना है। Fine. Now step number 2, step number 2 क्या है आपका, यहाँ पर C prompt पे जब आप पहुंच गए, अब आप यहां पर कमांड टाइप करेंगे flex एंड देन यू विल राइट द प्रोग्राम नेम। फाइन, तो प्रोग्राम नेम मेरा क्या है, grammar3.l, तो आई विल राइट दिस। नाउ दिस particular step will create a file lex.yy.c. okay, but after this your step 2 will include another command that is called as yak. yak के साथ आप दो ऑप्शन यूज करेंगे। जनरली हम एक ऑप्शन यूज करते हैं, बट क्योंकि आप विंडोज पर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपको दो ऑप्शन यूज करने हैं। एक -d ऑप्शन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट y.tab.h। फाइन, और y, जब आप यहां पर y ऑप्शन भी दोगे तो ये y एक्सटेंशन की फाइल को एक्सेप्ट करेगा विंडोज में। लिनक्स पे आपको ये देने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप विंडोज पे यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये .y एक्सटेंशन की फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको क्योंकि y.tab.h नाम की फाइल बनानी है, स्टार्ट नेम यू वांट इट एज ए y, तो इसलिए आपको यहाँ पर y ऑप्शन देना पड़ेगा। सो नाउ यू विल गिव दी इनपुट, किस फाइल को कंपाइल करना है आपने, grammar3.y को। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब आप यूज करेंगे GCC सी कंपाइलर। यहां पर सबसे पहले आप देंगे lex.yy.c, पहले लेक्सिकल एनालाइजर देंगे, बिकॉज लेक्सिकल एनालाइजर से जो टोकन निकलेंगे वो टोकन आपके कहां जाएंगे, y.tab.c यानी पार्सर के अंदर जाएंगे। तो अब आप देंगे y.tab.c फाइल, राइट। इस स्टेप को करने के बाद आपकी फाइल क्रिएट होनी चाहिए a.out।
बट क्योंकि आप विंडोज पर वर्क कर रहे हो तो आपकी फाइल क्रिएट होगी a.exe. मैं यहां पर लिख देती हूं, दिस विल क्रिएट अ फाइल a.exe. लेकिन अगर आप लिनक्स पे काम करोगे सो फाइल विल बी a.out. यहां पर आपकी दो फाइलें क्रिएट होंगी, y.tab.c and y.tab.h. Fine. So these two files will be created. y.tab.h file will have all the tokens used in the Yak program, and these tokens are included in the Lex program. वो हमने देखा था, हमने ऊपर एक फाइल इंक्लूड करी थी. यहां पर ये देखिए हमने एक फाइल इंक्लूड करी है. ये फाइल कहां से बन करके आई है? एक्चुअली ये यहां से बन के आई है. तो जब आप जीसीसी कंपाइलर दोगे ना, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक आपके लेक्स फाइल के अंदर y.tab.h नाम की फाइल आपने ऊपर लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करी होगी, राइट? तो अब आप सिंपल यहां टाइप करोगे a, नाउ योर प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड. सो वील ट्राई ऑल दी स्टेप्स नाउ. ओके, कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करोगे? टूल्स पे जाओगे, यू विल गो टू टूल्स, ओपन cmd. नाउ योर कमांड प्रॉम्प्ट इज ओपन. So first command is flex, file name is grammar3.l. If there is no error in the file, your program will be compiled. Now the next is Yak. The options are D and Y, and the file is grammar3.y. File is executed. Now the next command is gcc lex.yy.c, and second file is y.tab.c, right? Enter. Okay, now let's check all the things. So dir, now you can see these two files, y.tab.c and y.tab.h. okay, and this is lex.y.c. इतना बन चुका है. अब हमें देखना है a.exe बनी है या नहीं बनी है. So this is your a.exe file. This is your a.exe file which is created. Now आपका पार्सर कहां पर आ गया? a.exe में आ गया है. तो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, we'll type only the first name of this file. तो आपने फर्स्ट नेम टाइप करा इस फाइल का a. Will take some time. Now it has given a message. तो सबसे पहले मैंने टाइप करा b, string is not accepted. वाई रैप लगाया था तो इनपुट एग्जॉस्ट होने पे ही आपको बाहर ले आया. सॉरी, exit 0 लगाया था मैंने, तो ये ऑटोमेटिकली नॉट एक्सेप्टेड करने के बाद बाहर आ गया. नाउ अगेन मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, a not accepted. Why? Because our grammar will accept equal number of a's and equal number of b's. Now let's check this. String is valid. Again a b not accepted. अब हमें चेक क्या करना था? हमें चेक करना था ये string. Now check this string. It is not accepted. Now check this string. It is accepted. It is a valid string. So I hope this program is clear to you. Fine. So your practice question is, okay. Now your practice question is, okay, your practice question is design a program or write a program for validating strings accepted by a language L, which is equal to क्या चेक कर लें? which is equal to say a to the power n, and where n is greater than equals to 2, right? So this I want to verify. आपको ये इसके लिए एक
पार्सर डिजाइन करना है, LALR पार्सर डिजाइन करना है, राइट? या इजी कर लेते हैं इसे, पहले आप ग्रेटर देन 1 के लिए चेक करके देखो whether you can make this program or not. चलिए 1 के लिए बना लेंगे तो 2 के लिए भी बन जाएगा. तो एक हिंट इसके लिए कंप्लीट कर लेते हैं. सबसे पहले कि स्ट्रिंग कौन सी एक्सेप्ट होगी. मिनिमम स्ट्रिंग विल बी A, then AA, then AAA. These type of strings will be accepted by your language. तो इसका ग्रामर क्या बनाएंगे आप? S tends to A, S and A, because null is not accepted. So this will be your grammar. So you need to design a program for this particular grammar, right? In the next lecture, we'll discuss some program of the parser, and we'll also design one calculator using the lex. Fine. Expressions हम बना करके देखेंगे और उनके results को verify करके देखेंगे. So I'm ending this meeting here only. If you have any confusion, you can ask.